Hello friend, myself Rajesh from Universal Public School, Shahjani Aurang. Now in last class we study inscribed angle theorem, right? Now today we start as cyclic quadrilateral, right? What is cyclic quadrilateral? Quadrilateral means the figure having four sides, right, are called quadrilaterals. What is cyclic quadrilaterals? If, तो definition लिखो, if R vertices of a quadrilateral if all vertices of a quadrilateral lies on the same circle, right? If all vertices of a quadrilateral lies on the same circle, then it is called a cyclic quadrilateral. राइट, तो क्वाड्रिलेटरल के सभी वर्टिसेस क्या होना चाहिए? सर्कल के ऊपर रहना चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, राइट? तो see here, ABC is a quadrilateral and R vertices, तो vertices A, B, C, D, R lies on the सर्कल, तो सभी क्या है? सर्कल के ऊपर है, तो इसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, राइट? इफ ऑल वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल लाइज ऑन द सेम सर्कल, देन इट इज कॉल्ड एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट? ABCD आर द vertices of a quadrilaterals, right? तो quadrilaterals means the figure having four sides and four vertices. तो next bit is theorem of cyclic quadrilateral. तो cyclic quadrilaterals means the all point or the all vertices of a quadrilateral lies on the same circle, then it is called cyclic quadrilateral. Then what is the theorem of cyclic quadrilateral? तो statement देखो, opposite angle of a cyclic quadrilaterals are supplementary. So supplementary angles mean the sum of two angle is equal to 180 degree. Opposite, right? So see here theorem, इसका statement लिखो आप, right? Opposite angle of a opposite angle of a cyclic quadrilateral are supplementary. So supplementary angles means the sum of angle is equal to 180 degree, right? This is statement. So see here, opposite angle of a cyclic quadrilateral are supplementary. तो आपके बुक में fill in the blank में दिए हुए theorem, right? तो see here, first हम फिगर निकालेंगे, राइट? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फिगर निकालो आप, तो ABCD, right? The all
vertices of a quadrilateral are lies on the circle, then it is called cyclic quadrilateral at opposite angle. So A is opposite to C and B is opposite to D, then angle A plus angle C is equal to 180 डिग्री है बोल के हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है, राइट। तो गिवन क्वाड्रिलेटरल, तो यहां डैश दिए सो है, इस साइक्लिक बोल के दिए सो है, राइट। तो अपना क्वाड्रिलेटरल क्या है, ए बी सी डी, यहां लिखो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए साइक्लिक। टू प्रूव, तो फिल इन द ब्लैंक में है, अब फिल इन द ब्लैंक में लिखो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, तो फिल इन द ब्लैंक में है ये, राइट। तो सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री लिखो यहां, राइट। अगेन तो यहां देखो एंगल सी का अपोजिट कौन सा है, एंगल ए है, राइट। एंगल ए, राइट, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज गिवन एंड टू प्रूव। तो हम नेक्स्ट प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए मैं सब एरर्स करता हूं, राइट। तो नेक्स्ट प्रूफ, to see arc ABC is intercepted by the inscribed angle, तो लिखो, राइट, आर्क ABC is intercepted by arc ABC is intercepted by the inscribed angle ADC, राइट। तो सी है आर्क यहां से, राइट। तो आर कौन सा है, ABC है, राइट, दिस आर्क, राइट। एंड डी इज द एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल के बीच में जो भी आता है उसे हम इंटरसेप्टेड आर्क कहते हैं, राइट। ABC इज ए इंटरसेप्टेड आर्क इन द इंस्क्राइब्ड एंगल ADC, right? Therefore ADC is equal to half of, तो हमें क्या लिखना है, राइट। तो ADC एंगल D is equal to half of मेजरेशन ऑफ आर्क ABC, तो इसके हाफ में A एंगल रहेगा, राइट। तो मेजरेशन ऑफ आर्क ABC, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली तो फिल इन द ब्लैंक में लिखो एंगल ABC इज, तो दिस एंगल इंस्क्राइब्ड, दिस इज इंस्क्राइब्ड एंगल एंड आर्क इज ADC, आर्क आता है इसके ऊपर। अब इस एंगल को लीजिए आप, अगेन ABC इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल, it intercepted arc ADC, तो B है, राइट। B इज ए एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो इसका इंटरसेप्टेड आर्क कहां से स्टार्ट होता है, A से अप टू C तक, राइट। तो इंटरसेप्टेड आर्क ADC, तो यहां लिखो therefore
angle ABC is equal to half of measuration of arc ADC। एंगल बी लेने के बाद ADC आता है, तो यहाँ एंगल लिखना है, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फिल इन द ब्लैंक है देखिए, राइट, और यहाँ फिल इन द ब्लैंक ये है, राइट। इक्वेशन नंबर 2, देयरफॉर measuration of angle ADC plus measuration of angle ABC is equal to 1/2 measuration of arc, right। तो ADC का क्या है, ABC है, प्लस हाफ ऑफ measuration of arc ADC, राइट। और फ्रॉम 192 आप लिख सकते हैं, राइट। तो आपके फिल इन द ब्लैंक में इसे और इसे पुट कीजिए। नेक्स्ट, वन बाई टू, तो कॉमन लीजिए इन दोनों में, 1/2 ब्रैकेट measuration of arc ABC plus measuration of arc 1/2 कॉमन लिए है ADC, राइट। तो measuration of arc ABC प्लस मेजरेशन ऑफ आर्क ADC, तो देखो ABC आया और ADC आया, तो कंप्लीट हो गया ना, राइट। तो लिखो आप 1/2 इनटू, तो मेजरेशन ऑफ कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। तो 1/2 और 2 से इसे ये करो 180 आता है, तो 180 डिग्री, राइट। तो एंगल ADC इज इक्वल टू मेजरेशन ऑफ एंगल ADC प्लस ABC है यहाँ, तो D एंड B एंगल, यहाँ लिखो एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। द opposite angle of a cyclic quadrilaterals are supplementary। तो 180 डिग्री आने के बाद वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो फर्स्ट इसे प्रूफ करने के लिए, राइट, तो फर्स्ट डी लीजिए, डी इज ए इंस्क्राइब्ड एंगल एंड इंटरसेप्टेड आर्क इज ABC लेना है। तो सिमिलरली बी इज ए इंस्क्राइब्ड एंगल एंड द इंटरसेप्टेड आर्क इज ADC, देन दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद कंप्लीट सर्कल होता है, राइट। मेजरेशन ऑफ एंगल B एंड एंगल D इज इक्वल टू, सॉल्व करने के बाद 180 डिग्री आता है। सिमिलरली मेजरेशन ऑफ एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर द थ्योरम इज प्रूव्ड। इस तरह से आपको प्रूफ करना है। तो नेक्स्ट बिट इज कलोरी ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, राइट। तो ओनली स्टेटमेंट जो से आप ओनली स्टेटमेंट लिखो, an exterior angle of a cyclic quadrilateral, an exterior angle of a cyclic quadrilateral is congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle, राइट। तो ओनली स्टेटमेंट है, आप स्टेटमेंट देख लीजिए, राइट।
An exterior angle of a cyclic quadrilateral is congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle. The given only statement, अब statement एक बार देख लीजिए, right? तो next bit is converse of cyclic quadrilateral theorem. They also given only statement, right? अब statement एक बार देख लो. If a pair of opposite angle of a quadrilateral is supplementary if a pair of opposite angle of a quadrilateral is supplementary, then the quadrilateral is cyclic. Then the quadrilateral is cyclic, right? The given only statement, अब statement एक बार देख लीजिए, right? If a pair of opposite angle of a quadrilateral is supplementary, then the quadrilateral is cyclic. Again in page number 70 the given theorem, तो उसका भी प्रूफ नहीं है, मैं एक बार आपको पढ़ के दिखाता हूं. If 2 points on a given line subtend equal angle at 2 distinct points which lies on the same side of the line, then the 4 points are concyclic, right? तो प्रूफ नहीं है इसका, ओनली स्टेटमेंट है. आप एक बार स्टेटमेंट देख लो. इफ 2 points of a given line subtend equal angle at 2 distinct points which lies on the same side of the line, then the 4 points are concyclic, right? तो एक बार आप देख लीजिए. नेक्स्ट वी गो टू सॉल्व एग्जाम्पल, राइट? उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल in figure the given, right? This is figure, right? Center L, M, and this is N, and this angle is 35 degree, and the given LN as well as LNs are equal. देखना है हमें, right? Example number 1. In figure, right? Chord LM is congruent to chord LN is congruent to chord LN, and angle L is equal to 35 degree. Then find, तो उसमें फर्स्ट देखो, find measuration of arc MN, measuration of arc MN, and second question मेजरेशन ऑफ आर्क. तो एम एन एक फाइंड आउट करना है और एल एन. तो देखो मेजरेशन ऑफ आर्क एम एन फाइंड आउट करना है, तो एल इज द इंस्क्राइब्ड एंगल एंड दिस इज इंटरसेप्टेड आर्क, राइट? तो सी हियर solution. So see here, angle L is equal to half of measuration of arc ML, right? तो अभी हमने किया है बिकॉज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. राइट? तो हम ऐसे लिखेंगे एंगल L इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरेशन ऑफ आर्क MN, राइट? तो एंगल L इज गिवन 35 डिग्री 1/2
मेजरेशन ऑफ आर्क एम एन, राइट, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 70 इज इक्वल टू मेजरेशन ऑफ आर्क एम एन, और मेजरेशन ऑफ आर्क एम एन इज इक्वल टू 70 डिग्री. दिस इज प्रूफ 1, राइट. अब सेकेंड करेंगे हम, तो इसे निकालता हूं मैं. तो हमें सेकेंड क्या फाइंड आउट करना है, मेजरेशन ऑफ आर्क एल एन फाइंड आउट करना है. एल एन फाइंड आउट करना है, तो इसे फाइंड आउट करना है, इस आर्क को हमें फाइंड आउट करना है. तो सी सेकेंड, मेजरेशन ऑफ आर्क एम एल एन इज इक्वल टू, तो टोटल, राइट, 360 माइनस, तो हमें फाइंड आउट किया है एम एन, राइट, तो माइनस मेजरेशन ऑफ आर्क एम एन, राइट, by the definition of arc. So 360 minus 70 degree is equal to 290 degree, right. तो और क्या दिए सो है गिवन में, cor lm is congruent to cor ln, राइट, इक्वल है बोल के बताया सो है. Therefore, कॉर्ड इक्वल रहने के बाद आर्क ऑटोमेटिक क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे. Lm is congruent to arc Ln, right. Therefore, measuration of arc Ln plus measuration of arc Ln is equal to measuration of arc MLN, right. Measuration of arc MLN is equal to 290 डिग्री. तो यहां देखो मेजरेशन ऑफ आर्क MLN, तो यहां LM है, राइट, LM है, तो फर्स्ट LM लीजिए, उसके बाद MN है, तो यहां से लेके यहां तक, राइट, तो टोटल 290 डिग्री है. तो किसके इक्वल है, MLN के इक्वल है, तो ऐसे इस आर्क तक, राइट, तो 290 डिग्री. Therefore, तो ये दोनों इक्वल है, राइट, और कॉन्ग्रुएंट है, तो हम इन दोनों के बदले एक लिख सकते हैं, या तो मेजरेशन ऑफ आर एलएम प्लस मेजरेशन ऑफ आर एलएम, दोनों को एलएम एलएम हम लिख सकते हैं. क्यों यहां लिखे सो है, देखो एलएम इज कॉन्ग्रुएंट टू एलएम, तो दोनों के बदले एक लिखेंगे हम, राइट. तो मेजरेशन ऑफ आर एलएम प्लस मेजरेशन ऑफ आर एलएम को भी हम एलएम ही लिखेंगे, राइट. तो इज इक्वल टू 290 डिग्री, देन 2 इंटू मेजरेशन ऑफ आर एलएम इज इक्वल टू 290 डिग्री, राइट. क्यों लिखा है मैंने एलएम एलएम, तो एलएन इज इक्वल टू अगेन एलएम, राइट, तो कॉन्ग्रुएंट है, राइट, दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल है, इसलिए 2 इंटू मेजरेशन ऑफ आर एलएम इज इक्वल टू, ऐसे लिखा है मैंने, राइट, इक्वल है इसलिए लिखा है, राइट. देयरफॉर मेजरेशन ऑफ आर एलएम इज इक्वल टू 290 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 145 डिग्री. और इसी को ही हम और मेजरेशन ऑफ आर एलएम, राइट, दोनों इक्वल है इसलिए मैंने एलएम भी लिखा है 145 डिग्री, राइट. इस तरह से आपको सॉल्व करना है.
तो एक मेथड से हम सॉल्व किया है, और एक मेथड आइसोलेशन ट्राइंगल लेके भी आप कर सकते हैं इन दोनों को भी, राइट। तो इतना करो आप, राइट। तो नेक्स्ट वी गो टू प्रैक्टिस सेट। तो सी हियर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 3.4 में फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन इन फिगर इन ए सर्कल विथ सेंटर O। तो सेंटर क्या है? O है, सेंटर इज O, राइट। लेंथ ऑफ ए कॉर्ड AB इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो कॉर्ड AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रेडियस है, राइट। तो क्वेश्चन आप लिख लो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो सी इन ए सर्कल विथ सेंटर O, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें फाइंड क्या क्या करना है वो लिखेंगे। फाइंड, तो फर्स्ट उसमें एंगल AOB, तो AOB तो इसे फाइंड आउट करना है हमें, राइट। सेकेंड एंगल ACB, तो इंस्क्राइब्ड एंगल फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट थर्ड आर्क AB, तो इस आर्क को, राइट। नेक्स्ट फोर्थ आर्क ACB हमें फाइंड आउट करना है। तो सी है फर्स्ट उसमें फर्स्ट सॉल्यूशन देखो, सेगमेंट, तो इसे फाइंड आउट करना है। सेगमेंट OA is congruent to segment OB because radius है वो, OA and OB are the radius of the same circle, right। तो रेडियस क्या होंगे? इक्वल रहेंगे, राइट। अगेन द गिवन कॉर्ड, तो गिवन में दिए कॉर्ड AB इज इक्वल टू रेडियस, राइट। कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस, therefore segment AB is congruent to segment OA and is congruent to segment OB, right। तो तीनों इक्वल होंगे, राइट। तो तीनों इक्वल होने के बाद therefore triangle AOB is an equilateral triangle। equilateral triangle means all sides are equal, right। therefore angle AOB is equal to 60 degree, right। तो यहां all sides are equal, then it is an equilateral triangle and the equilateral triangle have angle 60 60 60। तो कौन से भी एंगल आप 60 डिग्री होंगे, राइट। तो नेक्स्ट वी गो टू सेकेंड ACB, राइट। एंगल ACB फाइंड आउट करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इंस्क्राइब्ड एंगल के थ्योरम के नीचे ही एक स्टेटमेंट दिए हुए देखो, द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड बाय द आर्क एट द सेंटर। तो एंगल ACB इज इक्वल टू 1/2 ऑफ सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल क्या है? AOB है, राइट। तो दिस एंगल इज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल, राइट। तो अभी हमने फाइंड आउट किया है सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। तो यहां वो स्टेटमेंट लिखना है तो लिखो, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट वी गो टू थर्ड क्वेश्चन। तो सी हियर थर्ड क्वेश्चन, मेजरेशन ऑफ आर्क AB, तो माइनर आर्क है, तो डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू, राइट। तो किसके इक्वल होंगे? सेंट्रल एंगल के इक्वल होंगे, राइट। तो मेजरेशन ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। तो माइनर आर्क की डेफिनेशन से इसे लिखा है, तो माइनर आर्क के डेफिनेशन से उसे लिखा है, माइनर आर्क इज इक्वल टू द सेंट्रल एंगल। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, तो आर्क ACB हमें फाइंड आउट करना है। तो आर्क ACB फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे लिखेंगे इसे? मेजरेशन ऑफ आर्क AB प्लस मेजरेशन ऑफ आर्क, तो AB होने के बाद मेजरेशन ऑफ आर्क
ACB तो यहां से AB को, राइट, तो ACB इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, राइट, तो लिखो आप 360 डिग्री एंड वी नो दैट मेजरेशन ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस मेजरेशन ऑफ आर्क ACB तो यहां से यहां तक, राइट, तो ये मालूम है हमें 360 डिग्री, therefore measuration of arc ACB is equal to 360 minus 60 degree, तो 300 is the answer। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। रिमेनिंग प्रॉब्लम विल बी कंटिन्यूइंग नेक्स्ट क्लास। डू होमवर्क। थैंक यू।